Hello my dear students, good afternoon. This is Anurag Kumar Dubey, chemistry teacher from Shivrat Singh Children Academy. In last lecture, we have discussed about valence bond theory. Okay, today we are going to start a new topic, hybridization. Hybridization. Okay, this is most important topic, hybridization. Okay, valence bond theory does not explain shape of molecules satisfactory. Okay, valence bond theory does not explain shape of molecules satisfactory or polyatomic molecules. Okay, a scientist Pauling introduced a new concept, hybridization, to explain shape of polyatomic molecules or shape of molecules. Let us consider a simple molecule CH4 molecule. In CH4 molecule, carbon is the central atom and atomic number 6, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p2. Okay, or also you can write 1s2, 2s2 and 2p x1 and 2p y1 and 2p z0, because we know very well p subshell has 3 orbital px, py and pz. Okay, so px has 1 electron, py has 1 electron and pz has 0 electron. Okay, if these electrons filled in orbitals 2 electron and 2 electron and p subshell has 3 orbital, there is a 2 electron, 1 and 1, px and py and pz. Okay, we can see there is only 2 half filled orbitals. There is only 2 half filled orbitals in their valence shell. According to valence bond theory, only half filled orbital participate in bond formation. If carbon has 2 unpaired electrons or 2 half filled orbitals in their valence shell, so expected compound of carbon is CH2 or CH2. Yeah, other example CCl2. Why? Because only 2 half filled orbitals present in their valence shell. Okay, however, actual practice, carbon exhibit bonding capacity is 4. Bonding capacity is 4 and known compound is CH4 and CCl4. Okay, CH4 and CCl4. This can be explained on the basis of promotion concept. This can be explained on the basis of promotion concept. So CH4 in CH4 carbon is central atom, atomic number 6, electronic configuration 1s2, 2s2 and 2p2. This is ground state of carbon. This is ground state of carbon. Atomic number 6, promotion concept. CH4, carbon has
4 unpaired electron in their valence shell, that is based on promotion concept. How to promote electron from lower energy level to higher energy level. तो 1s2 and 2s, one electron jump from s subshell to p subshell or s orbital to p orbital, 2s1 and 2p3. This electronic configuration is excited state or excited state based on promotion concept. Okay, you can see 2 electron and s orbital has 1 electron and p orbital has 3 electron, 1 2 3 according to Hund rule. The s, or this is the p, this is the px, py and pz. 2p3 also you can write as 2px1, 2py1 and 2pz1, है ना. There are 4 half-filled orbital in excited state that is based on promotion concept. It means carbon can form 4 bond with other atom like as a hydrogen atom. It means carbon valence shell has 4 electron, 1 2 3 4, 2s 2p. What is the 2? 2 is the principal quantum number. 1 is also principal quantum number, but 1 n is equal to 1 means k cell, and 2 मतलब n is equal to 2 means l cell. L cell 2s 2p, both are same cell. So this is the outermost cell or valence cell, and valence cell has 4 electron. Of 4 orbital is half filled of hydrogen, atomic number 1, electronic configuration 1s1, that is also half filled, or shape of s orbital is spherical. There is a 1 electron hydrogen overlap 1 electron with carbon H. Okay, this is the CH4 molecule, है ना. But bond is not equivalent. First hydrogen, suppose that this is first hydrogen. First hydrogen overlap with 2s electron, okay, and other 3 hydrogen like the second, third and fourth. Second, third, fourth hydrogen overlap with 2p electron like as the second, third and fourth. The energy of 2p orbital is high in comparison to s orbital. Okay, then bond कभी भी इक्विवेलेंट नहीं होगा. ओके, तो जो बॉन्ड होगा वह इक्विवेलेंट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि 2s की जो एनर्जी है, इससे जो बॉन्ड ओवरलैप जो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन, वह उसका जो बॉन्ड है, और जो हमारा 2p के जो ऑर्बिटल्स है 1 2 3, इसके साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वह कभी भी इक्विवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा. ओके, टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट we required concept like as the hybridization. okay, तो इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जिससे इन सभी ऑर्बिटलों का जो बॉन्ड है वह इक्विवेलेंट हो जाए. टू इक्विवेलेंट बॉन्ड के लिए हमें कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा? हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? when 2 or more atomic orbitals mix with each other
each other to form a new set of equivalent orbitals of same energy is known as hybrid orbital, is known as hybrid orbital, and this process is called hybridization. Okay, so what is hybridization? When two or more atomic orbitals that is slightly different in energy, two or more atomic orbitals that should be slightly different energy, not largely different energy. If largely different energy, that cannot take part in hybridization. Okay, so two or more atomic orbitals that energy should be slightly different mix with each other to form a new set equivalent orbitals of same energy is known as hybrid orbital, and this process is called hybridization. है ना, क्लियर हुआ? चलिए, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंट हो, वही क्या करते हैं, एक दूसरे से मिक्स होकर के सेम एनर्जी के क्या करते हैं, नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं. फॉर्म जो ऑर्बिटल है, फॉर्म न्यू ऑर्बिटल इज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन. ओके, condition for hybridization. First, only the orbital in valence shell of atom are hybridized. Only the orbital in valence shell of atom are hybridized. It means you can say only valence orbital can participate in hybridization. The orbitals undergoing hybridization should have a small difference in energy. ओके, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्बिटल्स हैं उनके बिटवीन एनर्जी गैप जो है वह स्मॉल होना चाहिए. इफ इट इज लार्ज, अगर ये लार्ज होगा तो वह ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज नॉट essential that only half-filled orbital participate in hybridization. ओके है ना, इट इज नॉट एसेंशियल. ये जरूरी नहीं है कि केवल हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही क्या करें, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करें.
कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं, मोस्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, बट इन सर्टेन कंडीशन फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। केवल कुछ कंडीशन में ऐसा होता है, उसको हम आपको बताएंगे, लेकिन मोस्टली हाफ फील्ड ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ hybridization. Types of hybridization. Okay, on the basis of atomic orbital taking part in hybridization, it is of following type. Okay, classification or types of hybridization on the basis of atomic orbitals taking part in hybridization, it is of following type. Okay, like as sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, and sp3d hybridization, and fifth sp3d2 hybridization, or also sp3d3 hybridization, but from sp2 sp3d2 is sufficient for you. Okay, so sp2 hybridization. So first of all we will discuss about sp hybridization. sp hybridization. First question, what is sp hybridization? That is very simple. If definition of hybridization is clear, so you can easily explain sp hybridization. When sp s is 1 and p is also 1, so when one s orbital and one p orbital, one s orbital and one p orbital mix with each other, to form two sp hybrid orbital of same energy is called sp hybridization. What is sp hybridization? When one s orbital and one p orbital mix with each other and form two, how many? Two sp hybrid orbital of same energy is called sp hybridization. Okay, this is the definition of sp hybridization. Okay, like one s orbital, shape of s orbital is spherical. ये क्या है? s orbital. And one p orbitals, we know very well, shape of p orbital is dumbbells. Okay, so one p orbital, we know very well, p subshell has three orbitals, px, py and pz, and shape is dumbbell, like the px and py and pz. Okay, so this is the s orbital in case of sp hybridization, and one p orbital, suppose that this is px, the p orbital. Okay, x axis, y axis and z axis. One s orbital and one p orbital
mix with each other. When one s and one p orbital mix with each other and form two sp hybrid orbital, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp hybridization. Okay, to form sp hybrid and form two sp hybrid orbital of same energy is called sp hybridization. जब ये दोनों मिक्स होंगे, when mix one s and one p orbital, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा? sp hybridization. और जो टू नए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, उनकी एनर्जी क्या होगी? सेम होगी. देयर इज अ नो डिफरेंस. ओके, तो जो हमारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा उसका शेप ऐसा होगा. दिस इज द 1 and 2. ओके, इसमें एक स्मॉल लोब्स ऐसे निकला रहेगा विच इज रिप्रेजेंट द हाइब्रिडाइजेशन. ओके, एनर्जी ऑफ बोथ ऑर्बिटल इज सेम और दिस इज कॉल्ड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. sp hybrid orbital. Okay, shape of sp hybrid orbital is linear and bond angle 180 degree and bond angle 180 degree. Okay, तो sp hybrid orbital का जो शेप होगा, स्ट्रक्चर ऑफ sp hybrid orbital इज लीनियर. हमेशा याद रखिए, अगर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो शेप ऑलवेज लीनियर होगा एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा. ओके, नाउ टेक एन एग्जांपल फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन. ये शेप हमेशा याद रखिएगा किसके लिए? sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए. ओके, फॉर एग्जांपल फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन, चलिए इसको बना देते हैं s ऑर्बिटल. एग्जाम्पल जैसे हमारा BeCl2, C2H2, BeF2, these are example of sp hybridization. We consider this molecule BeCl2. Okay, in BeCl2, Be is the central atom, है ना. ओनली जो सेंट्रल एटम होगा उसका जो बैलेंस सेल होगा उसके ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. जानते रहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम Be, एटॉमिक नंबर इज 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 and 2s2. 2s तो 2p पॉसिबल है. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन बिकॉज एटॉमिक नंबर इज 4, 2 to 4, but 2p orbital is possible. This is the ground state of beryllium. This is the electronic configuration of beryllium is ground state. Excited state में क्या होगा? प्रमोशन. क्या होगा? प्रमोशन from imbalanced 2s 2p both are balanced. Why? Because principal quantum number is same, but slightly difference energy 2s 2p. we know very well in above में सबसे कम एनर्जी 1s की, उससे ज्यादा 2s, उसके बाद फिर 2p. तो 2s 2p मतलब 2p तुरंत किसके बाद है? 2s के बाद. मतलब देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस इन एनर्जी. तो प्रमोशन इज पॉसिबल. प्रमोशन पॉसिबल है. जंप करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s1 एंड 2p1 हो जाएगा. ओके, अब देखिए s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. इससे तो कोई मतलब है नहीं, ओनली बैलेंस है. s 1 इलेक्ट्रॉन और p में क्या है हमारे? 1 इलेक्ट्रॉन. फॉर हाइब्रिडाइजेशन, फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन की देखिए 2s है, मतलब दिस इज द s ऑर्बिटल, दिस इज द s ऑर्बिटल और ये हमारा क्या है? p ऑर्बिटल. और फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन when 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल, नॉट 2 or 3, 1 s ऑर्बिटल एंड 1 p ऑर्बिटल मिक्स विथ ईच अदर. अब अभी देख रहे हैं अभी क्या है इसमें? अभी इसकी एनर्जी में स्लाइटली डिफरेंस है. व्हाई? बिकॉज दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज p
p ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है ना। लेकिन when mixed with each other, जब when s orbital and p orbital, one s orbital and one p orbital mixed with each other, जब ये आपस में मिक्स हो जाएंगे तो आफ्टर मिक्सिंग के बाद, क्योंकि जितने ऑर्बिटल, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में पार्टिसिपेट होंगे, ऑलवेज उतने ही नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अपने माइंड में इसको हमेशा याद रखिएगा कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे उतने ही न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। तो आप देख सकते हैं कि टू ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वन s एंड वन p। तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो कितने बनेंगे, टू ऑर्बिटल्स, वन इलेक्ट्रॉन इसमें, वन इलेक्ट्रॉन इसमें, अब दोनों आ गए इसमें। अब यहाँ पे एनर्जी में डिफरेंस था s और p की, इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए आफ्टर मिक्सिंग इसकी जो एनर्जी है दोनों की वह इक्विवेलेंट हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वी नो वेरी वेल शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज लीनियर, ऑलवेज क्या होगा, लीनियर होगा। तो बेरिलियम, इसके पास क्या है, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, दैट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो दो ऑर्बिटल्स को दिखा दीजिए, दैट इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसलिए इसमें हम स्मॉल लोब्स रिप्रेजेंट करते हैं, जिससे ये क्लियर रहे कि ये ऑर्बिटल कैसे हैं, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। और देयर इज अ टू इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गया और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइब्रिड ऑर्बिटल में हो गया, ओके। एंड बॉन्ड एंगल ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 180 डिग्री एंड शेप लीनियर। कैसा हो जाएगा, लीनियर शेप। इतना काम हो गया। इतना करने के बाद अब हम आएंगे अटैच्ड एटम पर, Cl2। तो देयर इज अ 2Cl, Cl एटॉमिक नंबर इज 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5, ओके। s फुल फील्ड, p 6 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड, AbS क्या है, फुल फील्ड, और p में क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन, और p सबसेल हैज 3 ऑर्बिटल, देयर इज अ 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 and 5. It means there is a only one half-filled orbitals. According to valence bond theory, only half-filled orbitals participate in overlapping. It means this orbital participate with sp hybrid orbital. और this is p orbital. तो shape of p orbital is dumbbell. See the shape of orbital, this is the Cl atom, or there is a one electron, this is the full field. Of full field orbitals does not participate in overlapping, only half field orbital participate in overlapping. और in hybrid orbitals is one electron and p orbital is one electron. ये overlap करके यहाँ पर क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फॉर एन अदर Cl एटम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है ना, सब कुछ क्या होगा, सेम होगा। तो ये इधर से ओवरलैप करेगा अदर Cl एटम, उसमें भी क्या होंगे, हाफ फील्ड, ए भी अपना इलेक्ट्रॉन लेके ओवरलैप करके क्या हो जाएगा, पेयर्ड, ओके। तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, बॉन्ड। अब शेप देखिए कैसा है, ये लीनियर, ये हमारा क्या है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ओके। और शेप कैसा होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का, लीनियर, देखिए कैसा है, लीनियर। एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो व्हाट इज द बॉन्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, तो दिस इज Be एंड यहाँ पे Cl है, यहाँ पे शेयर पे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड Cl, और यहाँ पे शेयर पे इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड Cl। शेप कैसा जा रहा है हमारा, लीनियर, एंड बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ओके। तो इतना हमको दिखाना होता है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। एग्जाम्पल C2H2 मॉलिक्यूल, ओके। इन C2H2 मॉलिक्यूल कार्बन इज द सेंट्रल एटम, ओके। तो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p2, दिस इज ग्राउंड स्टेट,
और इन एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन विल प्रमोट फ्रॉम 2s to 2p. ओके, दिस इज द बैलेंस सेल 2s 2p. तो 1s2 एंड 2s1 2s1 एंड 2p3. ओके, दिस इज द excited state based on the promotion concept. तो दिस इज द 1s, दिस इज द इनर मोस्ट सेल. ये कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा. सिर्फ कौन सा बैलेंस सेल के जो ऑर्बिटल है, यस में 1 इलेक्ट्रॉन एंड p 3 इलेक्ट्रॉन 1 2 3. हम पढ़ क्या रहे हैं? sp हाइब्रिडाइजेशन. फॉर sp हाइब्रिडाइजेशन s ऑर्बिटल and 1 s orbital and 1 p orbital mix with each other. किस हाइब्रिडाइजेशन के? sp हाइब्रिडाइजेशन. 1 s orbital and 1 p orbital mix with each other to form sp hybrid orbitals of same energy. ये दोनों आपस में मिक्स हो गए, दोनों की एनर्जी क्या हो गई? सेम हो गई. अब दोनों की एनर्जी क्या है? सेम है. इलेक्ट्रॉन 112 ये हमारा क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, शेप ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन है. कार्बन का जो शेप होगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का वो कैसा होगा? लीनियर. इसी को हमेशा याद कर लीजिए sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए. ये sp हाइब्रिडाइजेशन है. इसमें हम क्या दिखाएंगे? लोब्स. और देयर इज 2 इलेक्ट्रॉन इन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, लेकिन बस देयर इज 2 सेंट्रल एटम. कार्बन कितने हैं? 2 हैं. तो जैसे एक कार्बन के लिए होगा वैसे दूसरे कार्बन के लिए. ये हो गया कार्बन. इसके पास भी क्या होगा? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होगा. एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा एंड टू एंड. तो ये भी अपना इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करेगा? कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा. और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन. ये भी हमारा क्या है? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल. ओके, क्लियर हो गया. अब देखिए जो बच रहे हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन रिमेनिंग ऑर्बिटल कितने हैं? टोटल 2. इसको हम क्या बोलते हैं? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. इसको भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स को. ये दोनों एक ही ऑर्बिटल्स हैं. और ये हमारा क्यों हमेशा दिखा रहे हैं? क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन. मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये सिंगल ऑर्बिटल है ये. और ये ऑर्बिटल जो है और ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन. इसमें कहीं पर भी, चाहे यहाँ दिखाइए चाहे यहाँ पे, एक ही इलेक्ट्रॉन दिखाना है. और इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन. तो कहीं पर भी आप दिखा दीजिए क्या? 1 इलेक्ट्रॉन. जैसे एक कार्बन के लिए होगा वैसे सेम दूसरे कार्बन के लिए भी होगा. ठीक है. ये इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. और इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 1. कहीं पर भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, ये स्ट्रक्चर बन गया. अब हम बात करेंगे रिमेनिंग अटैच्ड एटम की. हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, s ऑर्बिटल देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन. और शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल. कैसा होगा? तो हाइड्रोजन का जो s ऑर्बिटल है वह ओवरलैप करेगा इस ऑर्बिटल से, हाइड्रोजन का. इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने? 1. यहाँ पे दे करके ये पेयर्ड हो जाएगा. देयर इज 2 हाइड्रोजन, अनदर हाइड्रोजन यहाँ पे ओवरलैप करेगा इस कार्बन से, अपना इलेक्ट्रॉन देकर के क्या हो जाएगा? पेयर्ड. ओके, अब देखिए इसमें इसका ये ऑर्बिटल और इसका ये ऑर्बिटल, इनमें ओवरलैपिंग कैसी होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग. ऐसे हाफ अप एंड हाफ डाउन. तो पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से, π/2 अप एंड π/2 डाउन. ओके, अब देखिए एक ये वाला है और एक ये वाला है. इसमें भी ओवरलैपिंग कैसी होगी? साइड वाइज ओवरलैपिंग. तो ये इससे ओवरलैप किया और ये इससे ओवरलैप किया. अप π/2, डाउन π/2. ओके,
ये कैसे ऑर्बिटल है हमारे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ए भी कैसा था sp, ए भी sp और ये भी sp, और ये सब कैसे हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। तो इसका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बन कार्बन इनटू इंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ओके, और यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन इनटू इंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन से हाइड्रोजन इनटू इंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, ओके। अब यहाँ देखिए कार्बन कार्बन साइड टू साइड ओवरलैपिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए एक और है साइड टू साइड ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा पाई बॉन्ड। अब देखिए इसका जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल आप देखिए कितना होगा 180 डिग्री, एंड शेप कैसा होगा लीनियर। अब देखिए शेप कैसा जा रहा है लीनियर, 1 to 1 इनटू इंड ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड, वन साइड टू साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड, अनदर साइड टू साइड ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड। तो फर्स्ट बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, अनदर बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, ओके। अब देखिए शेप कैसा है इसका, एक लाइन में है, दैट इज लीनियर, और बॉन्ड एंगल कितने का है 180 डिग्री का, ओके। तो कुछ एग्जाम्पल पे आप प्रैक्टिस करिएगा, जैसे BeF2 CO2 मॉलिक्यूल, BeF2 मॉलिक्यूल, BeF2 मॉलिक्यूल एंड CO2 मॉलिक्यूल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, ओके। तो आज के लिए इतना क्या है, काफ़ी है। दिस इज सफिशिएंट फॉर यू sp hybridization. In next class we will discuss another hybridization या another type of hybridization sp2, sp3, sp3d and sp3d2, okay. Thank you.